Hello everyone. Today we will start our next topic related to the planning chapter. Chapter number 4, planning. It is the second part of a planning. So we will start planning process from today onwards. So from the last lecture we start planning and we see what do you mean by plan, and then after the meaning we understand the features, natures and characteristics of plan, and then we go for what are the importance and significance of plan, and important concept what are the limitations of plan. And there is two types of limitation: internal limitation and external limitation. Then today we will understand the important concept of planning and frequently asked in your examination, what is the planning process. So whenever you want to set a goal, you have to follow some path, and for to follow that particular path you have to follow or you have to plan something. So today we will understand what is the process of planning. It is not a process to achieve that goal. It is the process of planning. How you can plan, how your plan can be a better and significance, or can be ensure you to achieve the goal. So today we will start our planning process. The very first process is setting up of objectives. And what is objectives? Objective is your end targets, where you want to achieve. So we know the planning definition, where we are and where we want to go, where we want to reach. That is the definition of planning. So now we are at a certain point, and in future you want to go to the certain point. So towards a certain point, you have to actually setting up that certain point, and the certain point is called the objective where you want to reach. So the very important concept of planning process, the initial thing is you have to set an goal. You have to setting up an objective. So the theory part is that in a planning function, manager begin with sorry manager begin with setting up an objective, because all the policies, procedure, methods are framed to achieving the objectives only. जितना भी आप प्लानिंग प्रोसेस में आप जितना भी बोल सकते हैं डिसीजंस लेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कुछ अपनी, वो सारी स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स वो टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव होंगे. तो सबसे पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. The manager set up very clearly objective of the company, keeping in the mind the goal of the company and physical and financial resources of the company. आपको जब भी गोल सेट करना है, आपको माइंड में रखना है कि आपका एंड टारगेट वही है जहां आपको पहुंचना है, where you want to reach. उसके लिए आपको अपना फिजिकल और अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करना होगा. ऐसा नहीं हो कि हाइपोथेटिकल गोल हो और वो अचीव ना कर पाए. Like so now, for example, you can become a CA, you can become a chartered accountant because you took commerce side, but you cannot do a MBBS after that. That is a hypothetical situation. So you have to plan a very importantly, very cautiously, that you have a enough or a sufficient resources to achieve that plan. So first, when you setting up an objective, what you have to do, you have to set a goal according to your resources. Then you have to you have to do how time, how many times it will take. So you have to set the time duration also, because if you want to become a CA and you said in a 50 age you will achieve the goal, तो 50 की एज में सीए करना, सीए तक पहुंचना इज नॉट अ गोल. तो आपको रीजनेबली बोलना है. ऐसा भी नहीं कि सर 2 साल में सीए निकाल दूंगा. भैया कोर्स 4 साल का है. ऐसा नहीं है कि मैं 20 साल में सीए निकाल दूंगा. उसके लिए टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, और उसके बीच में आपका लाइफ भी, आपका जर्नी भी रहेगा. तो जो सेटिंग ऑफ गोल है वो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए. और दूसरा चीज, ये तो हो गया जनरल टॉकिंग. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, तो जब भी आप गोल या ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो यू शुड बी कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द टॉप मैनेजमेंट, टू मिडिल एंड टू लोअर मैनेजमेंट. तो आपको ये गोल उनको बताना भी है कि भाई हमने ये सेट किया, तभी तो वो उस वे में काम कर पाएंगे.
तो हम लोगों ने बोला था इंडिविजुअल गोल को जनरल गोल से हमको क्या करना है, हमको इंडिविजुअल गोल की जगह जनरल गोल को लेके आना है, तो सबऑर्डिनेट द इंडिविजुअल गोल टुवर्ड्स द जनरल गोल। तो आपको जनरल गोल्स के को ऊपर रखना है, सबऑर्डिनेट करना है, जनरल गोल्स को ऊपर रखना है, ना कि इंडिविजुअल गोल को। इंडिविजुअल गोल को हमें नहीं समझना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को समझना है। तो उसको अचीव करने के लिए आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा इन वेल मैनर, ठीक है। दिस इज द सेटिंग ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज developing premises. And what do you mean by developing premises? Developing premises means when you want to achieve a goal, what you have to do, you have to assume that future, you have to assume future। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो आप कर रहे हो ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, प्लानिंग आपका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आज किया और कल भूल जाओगे, प्लानिंग ऐसा है जो फ्यूचर में आपको रिजल्ट देगा। उसके लिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना भी जरूरी है, आपको प्रिडिक्शन लगाना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, द पॉजिटिव एस्पेक्ट, द नेगेटिव एस्पेक्ट। तो सेकंड स्टेज में हम लोग प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, हम लोग उस फ्यूचर को अज्यूम करने का कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। तो ये रहता है हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोसीजर सबको समझेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी फोरकास्ट में आती है। इसमें इंटरनल फोरकास्ट भी आएगा, एक्सटर्नल फोरकास्ट भी आएगा। इंटरनल में आप लोग अपना जो सेल्स डिवीजन है उसको देखोगे वो कितना एफिशिएंट है, प्रोडक्शन डिवीजन को देखोगे कितना एफिशिएंट है, एम्प्लॉइज को देखेंगे कितने कैपेबल है, एरिया देखोगे आपका एरिया क्या है कंपनी का काम करने का, ये सब कुछ आप इंटरनल में देखते हो प्लानिंग पर्पज से। नेक्स्ट एक्सटर्नल में आप देखते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्यूचर में क्या हो सकती है, क्या हमारे बेनिफिट में हो सकती है, क्या हमारे अगेंस्ट में हो सकती है। हम लोग देख सकते हैं इफ यू आर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो क्या जिस कंट्री से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि वो एनिमी कंट्री हो सकता है इन फ्यूचर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी रहेगी व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्रीमाइसेस। देन लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को लेके आना है। जब भी आप किसी गोल की तरफ जाते हो तो ऐसा नहीं है कि एक सीधा रास्ता मिलता है, आपको वहां तक पहुंचने के लिए 3 से 4 रास्ते मिलते हैं। जैसे आप जब भी गूगल मैप पे एक लोकेशन पुट करते हो तो गूगल मैप आपको 2-3 रास्ते बता देता है। फिर आप चूज करते हो कि एक शॉर्टकट लेना है, एक कम ट्रैफिक वाला लेना है, या फिर एक ऐसा जिसमें कार इजीली जा पाए, या बाइक है तो बाइक के लिए शॉर्टकट अच्छा कौन सा रहेगा, या एक ऐसा जिसमें बहुत सारा सिटीज आ रहा हो, जिसमें रात का सफर है तो भैया हाईवे वाला ले लो। ये क्या है, ये वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं। तो आपको देखना रहेगा कि अल्टरनेटिव्स कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव अचीव करने। अब मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है, ऐसा नहीं कि अब ऑब्जेक्टिव चेंज कर दूंगा मैं अल्टरनेटिव्स के चक्कर में। मुझे जहां पहुंचना है, वेयर आई वांट टू रीच, ये फिक्स है। अब अल्टरनेटिव मुझे उसमें से चूज करना है। जब अल्टरनेटिव चूज करना है तो आपको पहले अल्टरनेटिव को बनाना रहेगा। assumption, आपने ऑब्जेक्ट सेट किया, assumption बना लिया, you develop the premises, now you list the various alternatives A B C D E, ऐसे alternatives आप बना लो। अब उन अल्टरनेटिव्स को आप इवेल्युएट करो। अभी तक तो आपने अल्टरनेटिव्स को बनाया है, अब इवेल्युएशन करोगे। आप इवेल्युएशन कैसे करोगे, आप कुछ assumption लोगे उस अल्टरनेटिव्स के इस पे, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखोगे, नेगेटिव एस्पेक्ट देखोगे। फिर आप देखोगे कि भैया अगर ये पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव भी है, या नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव है पर कम नेगेटिव है। तो ये सारा चीज, और जिसमें आप मैक्सिमम पॉजिटिविटी आप देखते हो, जो बहुत ज्यादा फिजिबल भी है, फिजिबल का मतलब इजी अचीवेबल भी है, जिसको बहुत आसानी से आप कर सको, तो मोस्ट फिजिबल भी है। और उस अजम्पशन, उस इवेल्युएशन के बाद आपको अल्टरनेटिव मिलेगा, उस अल्टरनेटिव को आप बेस्ट अल्टरनेटिव कहते हैं। ये इवेल्युएशन स्टेज। उस इवेल्युएशन स्टेज पे आपको पता चलेगा तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है, बट ऑब्वियसली सिलेक्ट द अल्टरनेटिव जो आपने इवेल्युएट किया था, ठीक है। अब कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने का, इंस्टेड आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव से उसको चूज करना रहता है। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूं कि जब भी कॉपी चेक करता हूं, हमेशा इवेल्युएशन जो होता है वो अल्टरनेटिव्स को देख के होता है। अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है बट उसके 10 मार्क्स हैं और कहीं और किसी बच्चे ने उससे भी थोड़ा और अच्छा मार्क्स लिखा है आंसर, तो आपको 10 ऑफ 10, उसको 10 ऑफ 10 नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं 9 या 9.5 और उसको 10 ऑफ 10 मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव को इवेल्युएशन हमेशा इस तरीके से किया जाता है एक दूसरे के साथ। इंडिविजुअली इवेल्युएशन इज नॉट पॉसिबल, इंडिविजुअली इवेल्युएशन हो ही नहीं सकता।
ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो लाइनिंग चैप्टर पढ़ा होगा आपके कभी स्कूल लाइफ में प्रीवियसली। लाइन में हम लोग पैरेलल लाइंस की बात करते थे, तो पैरेलल लाइंस हमेशा सीधी रहती है। अब पैरेलल लाइंस में अगर कोई लाइन, एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा और मैं बोलूंगा ये लाइन बताओ बड़ी है या छोटी है, तो आप इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। बट उसके पैरेलल अगर मैं कोई उससे लेंथ में बड़ी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो आप बता पाएंगे कि हाँ सर ये वाली छोटी है इस वाली से। या फिर मैं उससे छोटी करूंगा तो आप बोलोगे सर ये बड़ी लाइन है इस वाली लाइन से। ये इवेल्युएशन। तो हमेशा ध्यान रखना, इवेल्युएशन अकेले का नहीं होता, इवेल्युएशन हमेशा किसका होता है, अल्टरनेटिव्स के बीच में होता है। ठीक है, तो जब भी आपने प्लान बना लिया है, सब कुछ हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अल्टरनेटिव को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब एक बार और बता दूं कि प्लान बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे प्लान उसके सपोर्ट में बनाने पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सीधा आपने बोला कि नहीं यार सर 10 गुना सेल्स बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके लिए आपको छोटे छोटे लेवल पे प्लान बनाना पड़ेगा। और ये जो प्लान होते हैं ये रूटीन जॉब से रिलेटेड होते हैं, जो छोटे छोटे अल्टरनेटिव्स होते हैं उन अल्टरनेटिव को डेरिवेटिव प्लान्स कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव से। इसमें आप बोलते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपने सिलेक्ट कर लिया अल्टरनेटिव, अब आपको पता है कि कौन सा पाथ आपको लेना है, कौन सा रास्ता आपको लेना है। उस रास्ते के साथ में आपको छोटे छोटे प्लान्स भी बनाते जाना है। मतलब आप देखते होंगे ना, जब भी आप कहीं जा रहे होते हो तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से निकले इंदौर के लिए और सीधा इंदौर का देख लिया 350 किलोमीटर सीधा गए, बीच में आपके माइल स्टोन्स रहते हैं। द माइल स्टोन्स इज एन योर डेरिवेटिव प्लान। तो वो डेरिवेटिव प्लान, द स्मॉल प्लान जो सपोर्ट टू द मेन प्लान, इसको बोला जाता है बेटा डेरिवेटिव प्लान, और वो गोल्स के अचीव करने के लिए सपोर्ट करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, जब आपने अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर दिया, जब प्लान पूरा तैयार हो चुका, अल्टरनेटिव डिसाइड हो चुका है, तो अब उसका मेन एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया, इंप्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको मेन प्लान और सपोर्ट प्लान को ड्रॉ करना है, पेपर बनाना है या फिर आप फाइल बनाओ, पीपीटी बनाओ, और उस प्लान को आपको एक्शन में लेके आना है। ठीक है, उस एक्शन में जब भी आप प्लान को लेके आओगे तो उसके, मैंने एक बात बोली, एम्प्लॉइज को बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस प्लान को आपको अलोकेट करना है, और उस प्लान में जो भी रिसोर्सेस आपने सोचे थे, मैंने बोला था हाइपोथेटिकल तो है नहीं, एक्चुअल है, तो जो भी फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे, लेबर्स इन्वॉल्व थे उसमें, मैन का जो वर्किंग था उसमें इन्वॉल्व था, तो ये सब कुछ आपको क्या करना है, उस प्लान में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और एट लास्ट प्लान इंप्लीमेंट करके भूलना नहीं, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो याद रखना है और बार बार उसका फॉलो अप लेना है। क्या लेते रहना है, फॉलो अप लेते रहना है, ताकि क्या होगा, उससे पता चलेगा कि आपका प्लान सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जो आपने सोची नहीं थी प्लानिंग प्रीमाइसेस के टाइम पे, और वो आ चुकी है, लाइक आपने गवर्नमेंट पॉलिसीज को एनालिसिस किया था और सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, आपकी कॉस्ट बढ़ गई, लाइक चेंज इन जीएसटी, रातों रात जीएसटी आ गया। अब जीएसटी से क्या हुआ, आपको सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ रहे हैं, आपको उसके लिए हायर करना पड़ रहे हैं जो जीएसटी को थोड़ा समझ पाए, आपको उसके लिए ज्यादा एक अकाउंट डिपार्टमेंट में पर्सनल का जरूरत लग रहा है। ये सब चीज क्या है, ये सब चीज है जब फॉलो अप आप लेते हो तो आपको पता चलता है यार यहाँ यहाँ दिक्कत आ गई। तो ये सारी दिक्कत है जो आपको कहाँ पता चलेगी, फॉलो अप्स में पता चलेगी। तो प्लान का इंप्लीमेंटेशन जितना इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमारा रहेगा ये लास्ट रहेगा फॉलो अप। फॉलो अप के बाद अगर कुछ चेंज करना है तो अगेन आपको उसमें चेंजेस कर सकते हो आप। आपको लगता है कि नहीं सही चल रहा है सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा चलने दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है प्लानिंग प्रोसेस में। तो आई होप ये प्लानिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्लान। प्लान में सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान आता है। ये दो टॉपिक है हमारे, और टाइप्स ऑफ प्लान में बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से, प्लान और टाइप्स ऑफ प्लान। और नीचे बड़ा सा लेटर में लिखा हुआ है जो आपको मन को खुश कर देने वाला है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होते थे इन्हीं में, कि व्हाट इज स्ट्रेटेजी, व्हाट इज पॉलिसी एंड प्रोसीजर, व्हाट इज मेथड्स, रूल्स, इन सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे। तो अब सीबीएसई ने ये पूरा टॉपिक क्या किया है, सीबीएसई ने ये टॉपिक डिलीट कर दिया। तो प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है यहाँ से। ठीक है,
तो अब जो आपको पढ़ना है वो यहीं तक पढ़ना है प्लानिंग प्रोसेस में। इसके बाद जो प्लान, सिंगल यूज प्लान जो है आपका, टाइप्स ऑफ प्लान है, टाइप्स ऑफ प्लान के डिफरेंस हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब एक बात नोटिस करना, ऑब्जेक्टिव्स में भी फिर उनको पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव जब भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दिखेंगे आप उसको क्रॉस कर सकते हो। फिलिंग द ब्लैंक्स से लेके आपके हॉट क्वेश्चंस हो गए, बोल सकते हैं हम लोग के जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है उसमें, और केस लॉस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से, प्लान्स और टाइप्स ऑफ प्लान से रिलेटेड, तो आप उनको क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, अपनी बुक में मार्क कर दोगे। तो आप मार्क कर देना। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे बात कर लेना। यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये एंड होता है। आपको नेक्स्ट वीक तक में टिल चैप्टर नंबर 4, मतलब चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड, चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड, चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड, टिल 4 तक में अपनी फेयर कॉपी के जो नोट्स हैं वो मुझे भेज देना है। अगर किसी ने ऑलरेडी भेज दिए फर्स्ट और सेकंड के, तो आप फोर्थ के सीधा भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, वो रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। उसमें भी अगर कुछ डिलीटेड पार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एंड एंड करते हैं इस लेक्चर को with a quote: when life gets blurry, adjust your focus, means and smile also। तो अगर लाइफ में कभी स्ट्रगल आता है, नजर नहीं आ रहा होता है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, दैट द लाइफ बिकम ब्लरी, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू फोकस। मैंने बोला ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, गोल बनाना है, उस पर फोकस करना है। तो जब भी अगर लगता है कि लाइफ लाइन पे नहीं चल रही है, ब्लरी हो रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एडजस्ट योर फोकस, एंड एज वेल एज you have to smile like me always. So thank you so much. Have a good day ahead.